Hello everyone. So I'm here with the second part of the volcano. In the first part, we discussed about certain topics. If you want to find the link for the first part, the link is already there for Volcano 1 in the description box as well as in the comment box. So you can check out the video for Volcano 1. Let's see the topics that we have discussed in Volcano 1. In Volcano 1, we have already covered certain topics. The concept of volcano, the basic understanding of volcano. Then we talked about different types of volcano, mainly in two categories. One was based on nature of explosiveness, and second category was based on the nature of activeness. Under the first category, we talked about different types such as central type volcano. Then second, I told you about fissure type volcano. I explained the entire concept related to this. Then I told you about third one, composite type. I also gave another name to it, stratotype. And fourth one under the explosivity was the crater and caldera type volcano. These things we have already discussed in the last part. And then based on the activeness, we have further division called active volcano, dormant volcano, and third was the extinct volcano. So all these topics we have already covered in detail. Do check out the video for volcano part 1 so that you do not have any confusion with respect to the topic. Moreover, you get a better connect to the topic. पहला वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर सेकंड वीडियो को देखेंगे so that things are properly linked. So let's start with the third aspect of dimension. So in the first video, I told you that under volcano, we'll study about 5 things. First was the concept. Second was the types. Third मैंने बोला था, we'll talk about the causes of volcano. And fourth, I said I'll talk about the global distribution. And fifth, we are supposed to talk about the landforms associated with volcano. So these 4-5 dimensions will cover under this broad topic called volcano. 2 has been already covered. Let's move to the third part, the causes. The causes of volcano. When we talk about the causes of volcano, again, there are 2 broad causes. So one is explained with the help of the plates, that is called interplate volcanism. And second is intraplate volcanism. We have to figure out कि volcano एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही क्यों मिल रहा है. अभी हम लोग देखेंगे विद डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि कैसे there are certain areas where we have every now and then the activity of volcano. तो
there has to be some explanation to it. So basically two broad explanations have been given to it. One is the interplate volcanic theory, and then second is the intraplate volcanic theory. So interplate volcanism, we have already know about plate tectonics theory. And if you do not know about plate tectonics theory, do let me know in the comment section. We'll make a video on this. This is a very important theory in geomorphology. Rather, it is the most important theory for the students who are studying geomorphology. So plate tectonics theory की मदद से will explain the reasons for volcanism in different parts of the world. तो प्लेट टेक्टोनिक्स से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग, बहुत ब्रीफली मैं बता रहा हूँ वोल्केनो के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस theory, plate tectonic theory, the volcanic activities takes place along the margins of the plate, along the boundary of the plate. So let's say this is the lithospheric plate. ये लिथोस्फेरिक प्लेट है जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है. दैट इज व्हाट थ्योरी सेज. एस्थेनोस्फीयर इज सेमी मोल्टन, सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर. सो मान लेते हैं ये कोई एक बहुत बड़ी सी प्लेट है अर्थ के सरफेस पे. प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहता है कि द एंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू several major and minor plates. So there are hundreds of minor plates, and the theory talks about 7-8 major plates which all are distributed throughout the globe. तो मान लेते हैं ये कोई एक प्लेट है और इस पे दोनों टाइप का फोर्स लग सकता है. एक कॉम्प्रेसिव फोर्स लग सकता है और देयर माइट बी अ फोर्स जो टेंशनल नेचर का हो. टेंशनल फोर्स लग सकता है. कंप्रेसिव फोर्स होता है व्हेन अ फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट. तो ये वाला फोर्स अगर आप देखिए तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट. दिस वन इज टेंशनल फोर्स वेयर द फोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट. इसमें देखिए, so let's say it is subject to certain forces. वोल्केनो देखते हैं फिर कैसे होगा. तो मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वोल्केनिक एक्टिविटी occurs at the margin or the boundary of the plates, interacting plates rather, the plates which are interacting with each other. तो जब दो प्लेट आपस में इंटरेक्शन करेंगी तो कुछ एक्टिविटीज होंगी. उनमें से एक एक्टिविटी इज द वोल्केनिक एक्टिविटी. प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं उसको, बट ओवर हियर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक्स, दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, in order to explain the reasoning behind the volcanism. So let's say कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है. ये दो लिथोस्फेरिक प्लेट है and they are coming closer to each other. ये दो प्लेट है, दोनों में फोर्स लग रहा है एंड दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. तो एक चांस ये कोलाइड कर जाए, देयर इज अनदर चांस कि ये सबडक्ट कर जाए. एक प्लेट जो हैवी होगी दैट अंडरगोज सबडक्शन. सबडक्शन मतलब मूविंग बीनीथ द अदर प्लेट. तो ये सबडक्शन प्रोसेस. तो लेट्स सी दैट. पहला केस देखते हैं. जब प्लेट्स आर कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं. कन्वर्जेंट प्लेट का मतलब जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये एक प्लेट मान लेते हैं, एक प्लेट ये मान लेते हैं, एंड अंडर कन्वेक्शनल करंट, अगेन कन्वेक्शनल करंट
is a theory which is studied under geomorphology. So अगर convectional current theory भी आपको नहीं आती है तो let me know in the comment section. We can cover that as well. But for now मान लेते हैं कि ये कोई एक फोर्स है, ये सब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हो रहा है, तो ये इस तरीके से इस प्लेट पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये प्लेट दोनों क्लोज आने की कोशिश करेंगे, ये प्लेट ऐसे मूव करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, तो कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है बाय दिस कन्वेक्शनल करंट। ये जो करंट ऑपरेट कर रही है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू प्लेट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट। तो ये कन्वेक्शनल करंट के इन्फ्लुएंस में दिस विल कम क्लोजर। तो देयर आर many possibilities, but we are taking up the possibility which will result into volcanism. तो मान लेते हैं कि ये जो सेकेंड प्लेट है और ये फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट इज लाइटर देन दी सेकेंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट में मान लेता हूं लाइटर है, लाइटर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और ये हैवियर है। तो सेकेंड प्लेट इज हैवियर, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, तो इट विल सबडक्ट, इट विल मूव बीनीथ द फर्स्ट प्लेट। तो हो क्या रहा है, लेट्स सी दैट। ये फर्स्ट प्लेट है जो ऊपर रह जाएगी और सेकेंड प्लेट विल मूव लाइक दिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं सबडक्शन, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। तो जब इसका सबडक्शन हुआ तो ये अर्थ के इंटीरियर में और चली गई, अभी ये सरफेस पे थी, अभी इंटीरियर में चली गई। तो वंस इट गोज इनटू द इंटीरियर, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। मैंने क्या बोला कि जब सबडक्शन होगा तो ये वाली प्लेट जो सबडक्ट कर गई है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर की वजह से, तो जब प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे जियो मटेरियल है, दिस वन विल स्टार्ट मेल्टिंग, तो ये मॉल्टन जियो मटेरियल बन जाएगा, या जिसको हम लोग मैग्मा बोलते थे। तो मैग्मा का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ओवर एयर फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा इज हैपनिंग, और ये मैग्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा तो डोंट यू थिंक इट विल हैव टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। ये ऊपर की तरफ यहाँ मैग्मा बना यहाँ पर, और ये ऊपर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी होगी इसकी, इंट्रूजन होगा जो स्टेजेस थे वॉल्केनिक इरप्शन की, और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएगा। ओवर एयर यू विल सी वॉल्केनिक इरप्शन इज हैपनिंग। So this is how the volcanoes are formed along the convergent plates। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मार्जिन है इसका, यही मार्जिन है। तो दैट इज व्हाट आई सेड कि volcanic activity occurs at the boundary or at the margin of the plates। तो ये मार्जिन था, इस मार्जिन के इंट्रैक्शन से ये volcanic activity, तो ये लगभग मार्जिन पे यहाँ पे volcanic activity हो रही है। Is that okay? So with the help of convergent plates mentioned under plate tectonics theory, we can explain the formation of volcanism or a volcano across different parts of the world. Make sense? अभी हम देखेंगे जब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर होगा, जहां पर भी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी, मतलब सबडक्शन होगा, उन सारे मार्जिन्स पे, उन सारी बाउंड्रीज पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हर बार नहीं होगा, हो सकता है ये जो ऊपर वाली प्लेट हो बहुत हैवियर हो, तो ये जो इंट्रूड किया मैग्मा वो इंट्रूजन ना हो पाए और वो बाहर तक ना आ पाए, तो हो सकता है वोल्केनिज्म आपको दिखे ना कई बार। बट अगर इंटरप्लेट है, इंटरप्लेट इंट्रैक्शन है,
और सबडक्शन है, तो देर इज लाइकलीहुड कि वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। तो we'll see कि अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां जहां पर सबडक्शन हो रहा है वहां पर हमें उस प्लेट की मार्जिन के अलोंग अपने को वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल इफ आई राइट, तो द क्लासिक एग्जांपल वुड बी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा कि कहां पे ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो जहां भी अपने को सबडक्शन दिख रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ वोल्केनो, दैट इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। सर एक केस और हो सकता है प्लेट के ही अलोंग, प्लेट के मार्जिन के अलोंग जहां पे फिर से वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, उसको देखते हैं। तो इंटर प्लेट में ही सेकेंड पार्ट along the margins या बाउंड्री, हिंदी में सीमांत बोलते हैं बाउंड्री को, ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट्स। डाइवर्जेंट प्लेट अभी दिखाया था मैंने कि जब प्लेट पे टेंशनल फोर्स लग रहा होगा, तो मान लेते हैं ये है, इसको दोनों साइड से आप खींचोगे तो कहीं पे ये ब्रेक कर जाएगा, तो दोनों प्लेट अलग अलग दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे होगा सर? जब कन्वेक्शनल करंट कुछ ऐसे ऑपरेट कर रहा हो, ये प्लेट मान लेते हैं, और जो कन्वेक्शनल करंट है वो इट इज टेकिंग अवे द प्लेट्स, इट इज ट्राइंग टू, तो यहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक कर जाएगी प्लेट। तो होगा क्या कि ये प्लेट कुछ ऐसे ब्रेक करके यहाँ पे रिफ्ट फॉर्म कर लेगा, ये वाला एरिया ऐसे खाली हो जाएगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा क्योंकि प्लेट ऐसे मूव कर रही है, क्योंकि फोर्स टेंशनल नेचर का है। जो ये कन्वेक्शन करंट है it is taking away the plates, it is breaking the plates, it is rupturing the plate। तो यहां पर सर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लेट हट जाने से पहले, ये प्लेट ऐसी थी, अभी प्लेट हट गई जब, तो ये जो गैप आया यहाँ पर, ये जो गैप है, इस गैप में पहले ऊपर इसके रॉक था, अभी रॉक जब हट गया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो ओवरलाइन रॉक था, जो उसके ऊपर रॉक था, जब हट जाएगा तो इस पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाएगा। और अपने को पता है जब प्रेशर कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट दिया आपको कि प्रेशर कम होने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहां पर जो रॉक है, जो जियो मटेरियल है, जब प्रेशर कम हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर कम हुआ, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो इट विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू मेल्ट। भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो कम टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट कर जाएगा। तो जो टेम्परेचर है यहाँ पे, मे बी इट इज सफिशिएंट इनफ टू मेल्ट दिस। तो ये फिर से मॉल्टन जियो मटेरियल बन गया, और मॉल्टन जियो मटेरियल बन गया तो मॉल्टन जियो मटेरियल इज नथिंग बट दी मैग्मा। तो मेरा मैग्मा का फॉर्मेशन हो गया, और मैग्मा का फॉर्मेशन होते ही अगेन इट विल ट्राई टू एक्सपैंड, इट विल इंट्रूड, जो थोड़ी बहुत लेयर उसके ऊपर है, और यहाँ पर अपने को वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे वॉल्केनिज्म दिख जाएगा। यस और नो? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि एक प्लेट थी, मान लेता हूँ ये सिंगल प्लेट है, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स, ये प्लेट टूट गई, तो यहाँ पर जो गैप आया वो रॉक के हटने की वजह से, इस प्लेट के हटने की वजह से इस वाली सरफेस पे प्रेशर कम हुआ,
प्रेशर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो देयर इज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू मेल्ट, कम टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट कर जाएगा। तो जो टेम्परेचर यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, दैट टेम्परेचर इज सफिशिएंट इनफ टू मेल्ट दिस रॉक, एंड ये रॉक जैसे ही मेल्ट होगा तो मैग्मा का फॉर्मेशन हो गया। और मैग्मा का फॉर्मेशन मतलब कि फर्दर इट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द सरफेस और वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेगी। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। So this is how we are explaining the formation of volcano with the help of interplate volcanic theory, or it is also called interplate volcanism. तो interplate volcanism में हमने दो टाइप के इंटरेक्शन देखे जहां पे अपने को वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। फर्स्ट इज जहां पे दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, तो एक का सबडक्शन हो रहा है और फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया। मैं पहले केस में प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, दूसरे केस में मैं प्रेशर कम करके मेल्टिंग पॉइंट कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैग्मा फॉर्मेशन फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी, और सेकंड केस में जब ये प्लेट दूर चली गई तो प्रेशर कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो फिर से मैग्मा का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ different volcanoes along the plate margins। पहली लाइन हमने यही लिखी है कि volcanic activity occurs at the margins or the boundary of the interacting plates। Make sense? Now let's see this one। कई बार आपको क्या दिखेगा कि केवल प्लेट के मार्जिन पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ये प्लेट है, इसके यहां पर बीच में कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए दैट इज कॉल्ड इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म। तो अगर मैं इसको ए बी कर दूं, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर और क्लियर करने के लिए इसको मैं ए बी कर देता हूं। तो ए में मैंने दो पार्ट किए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट। बी को आप देखते हैं, बी है अपना इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म। इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म का मतलब कि प्लेट के बीच में कहीं, मार्जिन पे नहीं, यहां पर इस पार्ट में कहीं, बीच में कहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो लेट्स से कि ये प्लेट है, मान लेते हैं ये प्लेट है हमारी, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ये एक पोर्शन लिया है हमने अर्थ का, ये अर्थ के भीतर है हम लोग, इस पार्ट में हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ऑब्वियसली प्लेट के नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इस प्लेट पे हम लिख रहे हैं यहां पर कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो हो क्या रहा है सर, देयर आर सर्टेन पोजीशंस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मान लेते हैं ये कोई पोजीशन है जहां पर रेडियो एक्टिविटी बहुत कॉमन है। मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था, वॉल्केनो पार्ट 1 में, कि जहां भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अबंडेंस में होंगे वहां पे रेडियो एक्टिविटी वुड बी अ प्रोमिनेंट फिनोमिना। तो यहाँ पे जब रेडियो एक्टिविटी होगी तो फिर से सर बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी, एंड दिस हीट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, द मेल्टिंग ऑफ द जियो मटीरियल्स ओवर है जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कॉमन है। तो ये सर अपना फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा हो गया। And once magma is formed, it will again have the tendency to move। जहां भी उसको वीकनेस जोन मिलेगा, तो मान लेते हैं ये ऐसे ऊपर मूव कर रहा है, तो इस लेयर को ब्रेक करेगा, इस लेयर को ब्रेक करते हुए इस लेयर को भी ब्रेक कर देगा, और इस सरफेस पे अपने को वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेगी, वॉल्केनिक इरप्शन मिलेगा। मेक सेंस?
इस पॉइंट को वेयर दिस रेडियो एक्टिविटी इज वेरी कॉमन, इट इज कॉल्ड हॉट स्पॉट. And this entire theory is called hotspot theory. जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, इसको नाम दिया गया है हॉटस्पॉट थ्योरी. तो इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट थ्योरी. ये लाइन अपने को लिखनी है. एंड देन विल एक्सप्लेन दी व्हाट इज दिस हॉटस्पॉट थ्योरी, जो मैंने भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हॉटस्पॉट है कोई दूसरा, तो अपने को यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेगी. मेक सेंस? एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं. दिस वर्टिकल कॉलम, ये जो वर्टिकल कॉलम बना, दिस वर्टिकल कॉलम ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड मैंटल प्लूम. तो मैंटल प्लूम क्या होता है? ज्योग्राफिकल टर्म. तो दिस इज कॉल्ड मैंटल प्लूम. ये सब टर्म्स आपको किसी भी दिन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. So this was the explanation for the volcanic activity in different parts of the world. तो let's see कहाँ पे ये सब activities हो रही है. That and there comes the next topic called global distribution of volcanoes. Across the globe, volcanic activity prominently कहाँ पे दिख रही है, हम लोग globally distribute कर लेते हैं. तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए. वर्ल्ड मैप आपको भी ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ करते हैं वर्ल्ड मैप को. Let's say this is North America. This part is South America. ये इक्वेटर है. इक्वेटर को मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ सो दैट कि मेरा मैप थोड़ा. ये आपका अरेबियन पेनिनसुला रीजन. यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्सियन गल्फ के बाद फिर इधर आ गया इंडिया. इंडिया इक्वेटर को टच नहीं करेगा. देन बांग्लादेश होते हुए म्यांमार होते हुए मलेशिया एंड ऑल. फिर यहाँ से हमने चाइना का पोर्शन स्टार्ट किया, चाइना, रशिया, एंड देन दिस पोर्शन यहाँ पे जेटलैंड पेनिनसुला यूरोप का, फिर बाल्टिक सी, एंड देन ये स्पेन का पार्ट, और ये हल्का सा क्लोजर आते हुए ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट. एंड दिस इज रफली दी वर्ल्ड मैप. और अगर आप बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को भी ड्रॉ कर लेते हैं. इतना बड़ा कॉन्टिनेंट हम छोड़ नहीं सकते हैं. तो दिस इज रफली योर ऑस्ट्रेलिया. तो अब देख लेते हैं कि कहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी. तो अपने को पता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के पीछे जो प्राइमरी रीजन है दैट इज द इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म. तो इंट्राप्लेट थ्योरी आई एम सॉरी, कि प्लेट के मार्जिन्स के अलोंग. तो अपने को फिर से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की नॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अपने को पता है कि देयर आर, मैंने बोला कि 7-8 मेजर प्लेट्स अक्रॉस द ग्लोब. तो सबसे पहली प्लेट नॉर्थ अमेरिका प्लेट. नॉर्थ अमेरिका प्लेट अगर आपको याद हो तो ये है आपकी नॉर्थ अमेरिका प्लेट. ये दिस प्लेट इज नॉर्थ अमेरिका प्लेट. सो नॉर्थ अमेरिका ये एक प्लेट हुई, ये प्लेट, और दिस वन इज यूरेशियन प्लेट. ये मैं फर्स्ट प्लेट लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका. ये सेकंड प्लेट यूरेशियन प्लेट, ये पूरी सेकंड प्लेट है. ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है.
इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द जियोलॉजिस्ट कि नॉर्थ अमेरिका प्लेट और यूरेशियन प्लेट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं। तो डाइवर्जेंट होगा तो अपने को पता है कि डाइवर्जेंट का भी एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, ये वाला। तो जहां पे भी डाइवर्जेंट प्लेट होगा वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो इस पार्ट में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी, इस पूरे पार्ट में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी। और इसीलिए यहाँ पर रिजेस का फॉर्मेशन होता है, मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं। मेक सेंस? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी। ऐसे ही सिमिलरली ये तीसरी प्लेट है कॉल्ड साउथ अमेरिका प्लेट, तो यहाँ पर भी अपने को वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी। ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। तो इस मिड ओशियानिक रिज में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिख रही है। तो एक जोन तो ये हो गया, पहला जोन मैं लिख देता हूं मिड ओशियानिक जोन इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन है, तो यहां पर एक एक्टिविटी दिखी वॉल्केनो की, एक पूरा रेंज दिखा। मेक सेंस? सर ये है नॉर्थ अमेरिका प्लेट की दूसरी मार्जिन, लेफ्टवर्ड मार्जिन। इस साइड में पैसिफिक ओशन, ये पूरा साइड, क्योंकि एनीवे आपको पता है कि अर्थ स्फेरिकल है ब्रॉडली, तो ये वाला जोन इज पैसिफिक ओशन, ये वाला जोन इज पैसिफिक ओशन। यस, ऐसे। तो ये है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो पैसिफिक प्लेट सर ओशियानिक प्लेट है, क्योंकि ओशन है वो। ओशियानिक प्लेट्स आर हैवियर, ओशियानिक प्लेट्स आर हैवियर इन डेंसिटी। मैंने बताया था कन्वर्जेंट के टाइम पे, ये आपको इधर आती हुई दिख रही है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों लेफ्टवर्ड मूवमेंट। तो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका इस साइड और पैसिफिक प्लेट इस साइड, और ये हैवियर, तो ये सबडक्ट कर जाएगी, और इसकी सबडक्शन से यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी इस पूरे ऑल अलोंग दी कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पर फिर से वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी इस पोर्शन में। यस और नो? तो सेकेंड जोन अपने को दिखा कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिकाज, और ध्यान से देखो ये सेम पैसिफिक ओशन जो इस साइड मूव कर रहा है, अगर आप देखें इस साइड जा रहा है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, यूरेशिया के रिस्पेक्ट में, जो ये यूरेशियन प्लेट है, जो तीसरी प्लेट आपने दिखाई थी, यूरेशियन प्लेट आप देखो इस साइड मूव कर रही है। यस, और पैसिफिक प्लेट से जाके ये टकराएगी, जो पैसिफिक प्लेट यहाँ पर है, ये पैसिफिक प्लेट इससे टकराई, तो ये फिर से ओशियानिक प्लेट हैवियर, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर लाइटर कंपेयर टू दी ओशियानिक प्लेट। तो फिर से ये जो यूरेशियन प्लेट आ रही है और ये जो पैसिफिक प्लेट है, इन दोनों में जब इंट्रैक्शन होगा तो पैसिफिक प्लेट बीइंग ओशियानिक प्लेट विल सबडक्ट, तो फिर से यहाँ पर रिंग ऑफ फायर बनेगा, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। तो ध्यान से देखो, तो इसी में अगर मैं पैसिफिक के ही रीजन से जो दूसरा वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, अगर मैं इसको लिखूं, तो ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ यूरेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया होगा सर। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, इन दोनों को, तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपका अमेरिका वाला पार्ट, इस साइड में अमेरिका और इस साइड में यूरेशिया वाला पार्ट, ये सब यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी।
दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, जो मैंने आपको कन्वर्जेंट के टाइम पे बोला था। तो रिंग ऑफ फायर इज बेसिकली along the coast of पैसिफिक ओशन, या दूसरी तरीके से बोले तो along the western coast of America and eastern margins of Eurasia and Australia. So that entire ring has been referred to as ring of fire. Ring of fire क्यों? क्योंकि volcanic activity यहाँ पर बहुत common है. Is that okay? Make sense? Similarly, आपको यहाँ पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखती है या पोटेंशियल है वॉल्केनिक एक्टिविटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पता है तो आपको पता है कि अफ्रीका इज ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका इज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये पार्ट इधर जा रहा है, ये पार्ट इधर जा रहा है। तो देयर इज, अगर आपने सुना हो, समथिंग कॉल्ड एज अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसकी वजह से रिफ्ट वैली फॉर्म हो रहा है। रिफ्ट वैली बोलते हैं जो ये गैप फॉर्म हुआ था, इसको को बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये दूर जा रहे हैं सर दो कॉन्टिनेंट, तो फिर से यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो थर्ड मैं लिख सकता हूँ, थर्ड रीजन जहाँ पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेगी, तो दैट इज along the Great Rift Valley of अफ्रीका। तो ये थर्ड रीजन आपने फिगर आउट कर लिया कि कहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वॉल्केनोस का। इधर भी आपको बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेंगी along the southern coast of यूरोप, मेडिटेरेनियन के नदर्न साइड में। क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन है, इट इज मूविंग beneath the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea is moving beneath the, subducting beneath the Eurasian plate. तो फोर्थ बोल सकते हैं मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन, इनफैक्ट आपको सदर्न साइड ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन में भी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, फॉर द फैक्ट क्योंकि अफ्रीका इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स। तो ये अफ्रीका नॉर्थवर्ड जा रहा है, अफ्रीका ऊपर, तो ये मान लेते हैं अफ्रीका नॉर्थवर्ड मूवमेंट, और इधर मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन ओशन है, सी है, तो वो हैवियर होगी प्लेट। मैंने बोला ओशियानिक प्लेट्स आर हैवियर कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो ये सबडक्ट कर जाएगा। तो फिर से across the northern part of Mediterranean Sea as well as southern part of Mediterranean Sea आपको volcanic activity मिलेगी। So broadly these are the areas where we will find the volcanic activity across the globe. So this is the global distribution of volcanoes, जिसको हमने explain किससे किया, interplate theory से। दो जगह पे divergent, जैसे this is the example of divergent plate boundary, and this one is, first one is again example of divergent plate boundary, Atlantic का expansion हो रहा है, और this one, this western coast या ring of fire is the example of convergent plate boundary, right? And this one is also example of convergent plate boundary या margins. I hope this is making sense. Okay. Now the last topic related to volcanism, the landforms. This is a topic which could be important for the prelims examination. कुछ structures हैं जो आपको पता होनी चाहिए. Certain structures we have already discussed. तो landforms associated with volcano. देखते हैं कौन कौन से landform बनेंगे. तो landforms
associated with volcano are divided into two categories. क्यों ऐसा कैटेगराइजेशन किया? मान लेते हैं कि सर ये डोम है, ये वॉल्केनिक माउंटेन है, आइलैंड है कोई जिसपे वॉल्केनिक माउंटेन बना हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि मैग्मा जब यहाँ नीचे फॉर्म हो तो ये सरफेस तक आए, हो सकता है यही नीचे ही फंस जाए। जो ये मैग्मा इंट्रूड कर रहा है, हो सकता है ये जो लेयर है ये बहुत स्ट्रांग है एंड मैग्मा का प्रेशर इतना स्ट्रांग नहीं कि इस लेयर को, जो नीचे लेयर्स हैं, उसको तोड़ पाए। तो कई बार मैग्मा नीचे फंस जाएगा और कई बार मैग्मा ऊपर आ जाएगा, तो वो वॉल्केनो के फॉर्म में दिखेगा अपने को। तो उसी के बेसिस पे जो डिवीजन है, वन इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स मतलब the landforms formed due to volcanic activity over the surface of the earth। जो सरफेस है उसके ऊपर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिख रही है, और उस केस में जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, एक्स्ट्रा बाहर। ऐसे सेकेंड टाइप वुड बी, ए भी कर लेते हैं क्योंकि इसका फर्दर डिवीजन करेंगे हम लोग। The second type would be intrusive landform। Intrusive landforms का मतलब जो beneath the earth surface बनेंगे। ये है अर्थ सरफेस मान लेते हैं, इसके अंदर कुछ लैंडफॉर्म्स बनेंगे इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहां सब पे कहीं पे दिखेंगे। तो लैंडफॉर्म्स ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब वो वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको बाहर नहीं दिखेगी, सरफेस पे नहीं दिखेगी, बट कुछ लैंडफॉर्म्स अंदर विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कुछ लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, और उसका रीजन जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ए वाले केस में देखते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी इसका फॉर्मेशन देख रखा है जब टाइप्स डिस्कस कर रहे थे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सप्लोजन। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोनिकल लैंडफॉर्म्स। आपको याद है सेंट्रल टाइप का डिस्कशन जब मैंने किया था, सेंट्रल टाइप वॉल्केनो, तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको सरफेस पे मिल रहा है। ये मान लेते हैं सोर्स ऑफ मैग्मा है और इस तरीके से मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये माउथ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कोनिकल लैंडफॉर्म्स, राइट। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकता है हो रही हो सकता है डॉर्मेंट हो गई हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गई हो, राइट। तो स्ट्रक्चर कैसा मिला? कोनिकल। ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। कोनिकल स्ट्रक्चर कब बनेगा? सेंट्रल टाइप वॉल्केनो में। सेंट्रल टाइप वॉल्केनो कब बन रहे थे? when this magma, the upcoming lava, was characterized by high amount of silica content। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वॉल्केनो 1 में, हम देखेंगे डिटेल से। तो कोनिकल लैंडफॉर्म शुड बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ सेंट्रल टाइप वॉल्केनो। मैंने सेंट्रल टाइप का फर्दर एक्सटेंशन किया था, अगर आपको याद हो, composite type volcano and yeah these two। तो इन दोनों केस में अपने को सेंट्रल टाइप या कंपोजिट टाइप में कोनिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ये जो टाइप ऑफ वॉल्केनो होते हैं, इसमें मैग्मा में या लावा में सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है
तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो टेंडेंसी टू फ्लो, उस लावा की टेंडेंसी फ्लो करने की बहुत कम होगी। तो जब फ्लो नहीं करेगा तो जैसे जैसे ये लावा आएगा बाहर निकलेगा, ये एक्युमुलेट होता जाएगा, ये कूल होगा और वहीं पर माउथ के पास ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसलिए कोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, एक अच्छी हाइट का, ठीक ठाक हाइट का कोनिकल स्ट्रक्चर विद स्टीप स्लोप। स्लोप कैसा है? स्टीप। तो हाइट कैसी है? ग्रेटर हाइट, and second thing, it will have steep slope. So these things could be written in the prelims examination with respect to conical landforms or with respect to central type volcano. All these things could be written. Make sense? तो ऐसे सेकंड मैंने एक बताया था आपको, क्रैटर, एक स्ट्रक्चर बनाया था क्रैटर का वॉल्केनो वन में, टाइप्स में। तो क्रैटर और कैल्डेरा, इन दोनों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो वॉल्केनो पार्ट 1 को आपको चेक करना है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो क्रैटर एंड कैल्डेरा, तो थर्ड मैंने बना दिया कैल्डेरा, थर्ड लैंडफॉर्म। फोर्थ लैंडफॉर्म मैं एक्सक्लूसिव में ही बोल रहा हूं। अगर आप देखोगे तो जो ये मिड ओशियानिक रिजेस हमने बनाए, मिड ओशियानिक रिजेस कहाँ बन रहे हैं? मिड अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन मतलब पानी है, तो बहुत सारे माउंटेन लाइक पीक्स है, हिल लाइक पीक्स है जो अटलांटिक ओशन में पानी के नीचे दबे हुए हैं, उनको बोलते हैं अटलांटिक, और ऐसे राइट दिस मिड अटलांटिक ओशियानिक रिजेस। तो ये जो रिज फॉर्म हो रहा है, जो कटक फॉर्म हो रहा है, हिंदी में कटक बोलते हैं इसको, तो जो अटलांटिक ओशन के मिड में जो एक कटक बन रहा है, जो रिज बन रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। इज दैट ओके? तो तीन चार टाइप हमने देख लिए लैंडफॉर्म्स के, जो सरफेस के ऊपर बन रहे हैं ड्यू टू दी वॉल्केनिक एक्टिविटी। नाउ कम टू दी टाइप बी, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं फटाफट। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब जो बीनीथ द अर्थ सरफेस फॉर्म हो रहे हैं, the landforms which are formed beneath the earth surface. तो फर्स्ट एग्जांपल इसका एक इन्वर्टेड बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, अर्थ के इंटीरियर में ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, ये लैंडफॉर्म। यू आर लुकिंग इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो आपको ऊपर से नहीं दिख रहा है, फॉर सम रीजन मे बी वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से ये लैंडफॉर्म एक्सपोज हो जाए सरफेस पे, जैसे ये लेयर धीरे धीरे कटती जाए और जो इसके नीचे ये लेयर जो ऐसी है, ऐसे ही वो एक्सपोज हो जाए, तब आपको दिखेगी। तो दिस इज कॉल्ड बैथोलिथ। तो दिस इज इन्वर्टेड बाउल लाइक स्ट्रक्चर, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सेकेंड, इसी में अगर इसी इन्वर्टेड बाउल लाइक स्ट्रक्चर में एक कॉलम मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, दिस वन इज कॉल्ड, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैकोलिथ। दिस इज कॉल्ड लैकोलिथ। ऐसे ही, तो इन्वर्टेड बाउल लाइक स्ट्रक्चर विद एन इरेक्ट कॉलम है ऐसा, ये एक कॉलम इसके साथ अटैच्ड है।
राइट। थर्ड टाइप इसी में हो सकता है इसी का जस्ट उल्टा, जैसे बैथोलिथ बना, ऐसे ही मान लीजिए आपको इरेक्ट बाउल लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए, ऐसा कुछ इरेक्ट बाउल लाइक स्ट्रक्चर। This is called this is called लोपोलिथ। ये नाम आपको याद रखना है, नाम सिमिलर है बट 2-4 बार आप ड्रॉ करोगे तो याद हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ हो सकता है कि ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए अपने को, एक हॉरिजॉन्टल शीट लाइक स्ट्रक्चर हो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक ऐसा क्रैक है जो हॉरिजॉन्टली है और उसमें मैग्मा इंट्रूड कर जाए, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिल्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिल या प्लूरल में सिल्स। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि कोई क्रैक है और उसमें मैग्मा इंट्रूड करके सॉलिडिफाई हो रहा है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइक। तो total 5 types of intrusive landforms I have discussed. These things could be asked in the prelims examination. Okay, so that is it about the volcanoes. If you have any doubts, anything you are not able to understand, or if you have, any doubt with respect to the teaching style, if you want me to take, PPT to teach you, so although that is not my style, but again, and the reason for not having that style is so that you can also develop the habit of drawing these things, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वहां पे आप पीपीटी यूज करके या बना बनाया आपका वर्ड का मैप या ये सब स्ट्रक्चर आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे, आपको ये सब ड्रॉ करना होगा। तो इफ आई ड्रॉ इट तो आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा हाउ टू ड्रॉ दिस थिंग्स, सो दैट इज द रीजन आई यूज अ ब्लैंक पीपीटी। तो आई होप यू वुड अप्रिशिएट दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग। आई नो दिस टेक्स टाइम, बट आपको किस बात की जल्दी है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द kind of responsibility that you are going to be given. So having said all these things, let me end this with a quote that there is a Chinese proverb मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूँ, and I believe कि this suits to the preparation of UPSC, क्योंकि वो 1-1.5 साल का continuous effort चाहिए, continuous एक dedicated effort चाहिए, तो that kind of perseverance will only come if you are highly motivated. तो over here, do remember every time Chinese proverb कि talk does not cook rice. तो अगर आप केवल बातें कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो I believe कि you are not in the right direction. You need to change your strategy, start working. Okay, so thank you so very much. Let's see you in the next session. Thank you. Have a great day.